this is the MCQ marathon series for the 2022 board examination, and we are going to discuss some 30 questions. That is some 30 MCQ questions based on some topics of dual nature. Okay. So what we are going to do, we're going to take each question one by one, and we'll discuss what exactly is going to happen in these parts, right? And we'll give the right answer at the end of each question. Okay. Now, so the first question here is, when yellow light is incident on a surface, no electrons are emitted while green light can emit it. We know that the incident frequency greater than the threshold frequency, and it must be written like this, that incident frequency greater than equal to the threshold frequency, photoelectric emission take place, right? Photoelectric emission takes place. Okay. Now, what it says here, in general, we take this. Okay. In general, we take this for the condition. Nu is equals to nu naught is the condition when some question is being asked, but generally we take nu greater than nu naught for the photoelectric emission to take place, right? Okay. Now, if we see it, we can see C is equals to mu lambda. Okay. C upon lambda is equals to mu. Okay. So we can write it as C upon lambda greater than C upon lambda naught. That means lambda naught is greater than lambda. Okay. So this would be the condition in terms of your wavelength for the photoelectric emission to take place, right? Okay. Now understand this. Now what is this? This is the incident frequency. This is the incident frequency, right? This is the incident frequency. Now what is this? This is the threshold frequency. Okay. This is threshold frequency. What is this? This is the incident wavelength. Fine. This is the incident wavelength. And what exactly is this? This is the threshold wavelength. Okay. Now, so keep in mind that mu greater than mu naught and lambda less than lambda naught is the condition for emission to take place, right? Is the condition for emission to take place. emission को होने के लिए ये कंडीशन यहाँ पे चाहिए हो, ठीक है। चलो, ये तो हो गई हमारी जनरल बात जो मेरे को करनी थी इस पर्टिकुलर सवाल को बताने से पहले। अब इसने ये कहा है कि when yellow light is incident on a surface, no electrons are emitted. हम लोग अगर विब्ग्योर की बात करें, ठीक है, सो ये हो गया है आपका वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। लैम्डा वॉयलेट लेस देन लैम्डा इंडिगो लेस देन लैम्डा ब्लू लेस देन लैम्डा green less than lambda yellow less than lambda orange less than lambda red, right? So red color has the highest wavelength. This you should keep in mind because we have n number of questions regarding the wavelength part, right? So the red light has the highest wavelength, and the violet light has the minimum wavelength in WebViewer part, right? So what it says, when yellow light is incident on a surface, no electrons are emitted. That means no photoelectric emission is going to take place. Fine. So for yellow light, for yellow light, what we can write here is, if no photoelectric emission has to take place, we can say then definitely wavelength for the yellow light is greater than wavelength, that is threshold wavelength, ठीक है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कट ऑफ वेवलेंथ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। अब इसने कहा कि येलो लाइट है, और इन्होंने कहा कि येलो लाइट जब तुम्हारे पास सरफेस पे पड़ी तो कोई इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं हुए। इसका मतलब ये हुआ कि येलो लाइट की जो वेवलेंथ रही होगी वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा रही होगी, है ना। ये है हमने बोला। फिर इसने कहा कि
ग्रीन लाइट ने तो एमिट कर दिया, इसका मतलब 100% ग्रीन लाइट की जो वेवलेंथ होगी वो लैम्डा नॉट से कम होगी। भाई अगर एमिशन को होना है तो लैम्डा नॉट से कम होना चाहिए, इसलिए ग्रीन लाइट की वेवलेंथ जो है वो तुम्हारे पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होगी। 100% ये तय हो गया कि लैम्डा जी से ज्यादा है लैम्डा नॉट की वैल्यू और लैम्डा येलो से कम है। अब इसने कहा कि मान लो कि अगर रेड लाइट तुम्हारे पास इंसिडेंट कर रहे हैं सरफेस पे, ठीक है, अगर रेड लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है, रेड लाइट, अब रेड लाइट के बारे में तो तुमको ये बात पता है ना कि रेड लाइट तो तुम्हारे पास येलो से ज्यादा है, ठीक है। इसने कहा कि रेड लाइट अगर येलो से ज्यादा है तो इसका मतलब हुआ कि रेड लाइट भी तुम्हारे पास लैम्डा नॉट से तो ज्यादा ही होगा, ये तो तय हो गया। अगर तुम्हारे पास येलो लाइट ने लैम्डा नॉट से ज्यादा होने पे कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं दिया तो क्या रेड लाइट तुम्हारे पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा होने पे क्या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन दे पाएगी? नहीं दे पाएगी, सीधी सी बात है, बिल्कुल भी नहीं दे पाएगी, ठीक है। तो उसने कहा बिल्कुल भी नहीं दे पाएगी, इसका मतलब है नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, ठीक है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड दैट photons are not emitted, photons always strike on the surface, the photo electrons are emitted from the surface, right है। और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बना, ठीक है, क्योंकि हमको जब ये पता लगा कि रेड लाइट से इंसिडेंट करने पे तुम्हारे पास हो ही नहीं रहा है तो हम कहेंगे कि नो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास वहाँ पे एमिट नहीं होगा, ठीक है। So this would be the final answer. That is A would be the final answer. भाई अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा समय लगेगा हर क्वेश्चन को समझाने में, ठीक है। आप एक बार सीख लेंगे तो आपको तो मेरे से हार्डली 1/10 टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पे इसने हमसे क्या बोला है? अगला सवाल पे इसने हमसे बोला है कि एज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंक्रीजेस, जब इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बढ़ती है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताइए। देखिए ये तो मैंने आपको ग्राफ के थ्रू ही पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था कि ये तुम्हारे पास ग्राफ है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास फोटो करंट है, ये तुम्हारे पास फोटो करंट है, ओके, एंड ये तुम्हारे पास क्या है, ये इंटेंसिटी ऑफ तुम्हारे पास लाइट है। और मैंने आपको बताया था कि हम लोग इस पे एक ग्राफ बनाएंगे और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा जिसमें कि हम लोग फ्रीक्वेंसी को, जिसमें कि हम लोग फ्रीक्वेंसी को एंड जिसमें कि हम लोग एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को क्या रखेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे। तो हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि इन द ग्राफ ऑफ द इंटेंसिटी एंड द फोटो करंट which are those two parameters which are kept constant. So first is the frequency and second is the accelerating potential. But now the question is the intensity of the light increases तो photoelectric current का क्या होगा, ठीक। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। अब रही बात डिक्रीज की, ये तो हो नहीं सकता। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा क्या? नहीं। काइनेटिक एनर्जी ने साफ कर दिया, काइनेटिक एनर्जी ने तुम्हारे को साफ कर दिया कि हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब नहीं है किससे, हमको मतलब नहीं है इंटेंसिटी से, हमको मतलब नहीं है किससे, इंटेंसिटी से। तो आप इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बढ़ाओगे तो क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी क्या, या घटेगी क्या? नहीं, जब मतलब ही नहीं तो फिर क्या बढ़ना और क्या घटना, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे पढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारे पास, the kinetic energy with the electrons are emitted from the metal surface due to the photoelectric effect, okay, is independent of the intensity of illumination। हाँ, जो तुम्हारे पास होती है, ठीक है, is not the function of, is not the function of तुम्हारे पास क्या, intensity, is not the function, is not the function of intensity। फिर इसने क्या बोला है कि independent of the intensity of the illumination, ठीक, independent of the frequency of the light, inversely proportional to the intensity of illumination, directly proportional। इन्वर्सली प्रोपोर्शन होने का भी कोई लॉजिक नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होने का भी कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इल्यूमिनेशन, ये तुम्हारे पास बिल्कुल सही है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो लेट मी राइट द इक्वेशन, के ई मैक्स इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस तुम्हारे पास एच न्यू नॉट। अब ये जो तुम्हारे पास के ई मैक्स है, ठीक है, ये तुम्हारे पास फंक्शन है किसका, तुम्हारे पास इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, फंक्शन काहे का है, फंक्शन तुम्हारे पास जो है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का है। अब अगर ये तुम्हारे पास इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है? नहीं सर, हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये तुम्हारे इंडिपेंडेंट है?
ये तो डिपेंड कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, दिस वुड बी द करेक्ट। ठीक है ना, हर चीज का लॉजिक ही प्रॉपर रहेगा, आपको क्लियर रहेगा। इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, if the intensity of the light is double then the maximum kinetic energy, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तुम्हारे पास के ई मैक्स ने ये बात अपनी साफ कर दी है कि हम फंक्शन नहीं होते हैं तुम्हारे पास इंटेंसिटी का, ठीक है, हम नहीं होते हैं। तो एज ने कहा एज इंटेंसिटी इज चेंज्ड, एज इंटेंसिटी इज चेंज्ड, जब इंटेंसिटी तुम्हारे पास चेंज होती है, ठीक है, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब आधा करो, है ना, डबल करो, ठीक है, इंटेंसिटी में कुछ भी करो, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं आता, बस नहीं, ठीक है। तो ये रहता है तुम्हारे पास, तो इसका आंसर रहेगा क्या, इसका आंसर रहेगा नो चेंज। ठीक, अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ये तो कभी बात ही नहीं करी इसके बारे में, ठीक, तो ये नहीं होता। डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी, देखिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ने ये कहा था कि अगर हम, तुम्हारे पास इंटेंसिटी का फंक्शन नहीं है, अगर हम इंटेंसिटी का फंक्शन नहीं है, तो ये होता क्या है, ये तो ई वी नॉट होता है। तो ई वी नॉट ने कहा कि जब वो नहीं है तो फिर हम कैसे होंगे, हम भी नहीं होंगे। तो वी नॉट ने कहा कि नहीं है भैया, हम इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो इसने कहा कि अगर डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, नहीं, डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन द सरफेस नेचर, नहीं, ठीक है। इज इंडिपेंडेंट, यस, यही होगा तुम्हारे पास, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, next question we have here, if intensity of the incident light is increased in photoelectric effect, then which of the following will true, maximum kinetic energy of the electric electron will increase, नहीं, maximum kinetic energy of the electric electron will decrease, नहीं, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो यहाँ पर डिक्रीज करेगा, नहीं, क्योंकि इन लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब आई बात सिर्फ अकेले वर्क फंक्शन की, तो इसने कहा कि फाई नॉट ऑल्सो ऑल्सो नॉट चेंज, ठीक है, phi naught also not changed, ठीक है, when intensity is varied, when intensity is varied, when intensity is varied, जब इंटेंसिटी तुम्हारे पास वेरी करती है तो फाई नॉट भी यहाँ पर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर आएगा क्या, आंसर आएगा कि वर्क फंक्शन इज ऑल्सो नॉट चेंज, राइट ना। नेक्स्ट पार्ट, the retarding potential, the retarding potential for having the zero photo electron current, okay, the retarding potential for having, now what is this, the retarding potential for having zero photo electron current, एक्चुअल में डेफिनेशन है किसकी, ये डेफिनेशन है तुम्हारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल की, ठीक है, एक्चुअल में डेफिनेशन है तुम्हारे पास किसकी, ये तुम्हारे पास डेफिनेशन है स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन है, ठीक है, is proportional to the wavelength of the incident light, okay, now let us discuss. So kinetic energy maximum is equals to EV naught is equals to H nu minus तुम्हारे पास H nu naught, right? Now V naught can be written as H upon E nu or H upon E तुम्हारे पास nu naught, right? Now the stopping potential is proportional to the incident wavelength, क्या stopping पोटेंशियल जो है, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो तुम्हारे पास डिपेंडेंट है तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी पे, प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट के, हाँ, इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली विद द इंक्रीज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। अब देखो इसमें क्या है, जो पहला वाला ऑप्शन है वो प्रोपोर्शनल के बारे में बोला, डायरेक्टली इनवर्सली कुछ नहीं बोला, तो जब भी ऐसा बोलेंगे तो हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे, राइट, ठीक है। सो जरा यहाँ पे देख लेते हैं, हमने कहा कि एच अपॉन ई सी अपॉन तुम्हारे पास लेमडा, एच अपॉन ई तुम्हारे पास सी अपॉन लेमडा नॉट, ठीक। अब इसने क्या बोला कि हम जब भी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लेमडा की बात होगी अनलेस एंड अनटिल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बात ना कर ली जाए। तो इसने कहा कि इस प्रोपोर्शन को हम लोग लेंगे बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, नहीं, वी नॉट और लेमडा के बीच में देखो एक इनवर्स रिलेशन है, आप तो नहीं हो सकते। इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली विद द इंक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, नहीं, आप नहीं हो सकते। इस प्रोपोर्शनल, हाँ प्रोपोर्शनल तो तुम्हारे पास है भाई, वी नॉट को देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी तो प्रोपोर्शनल तो है। इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली विद द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी, इसने कहा ये वाली क्वांटिटी तो कांस्टेंट होगी, ये वाली क्वांटिटी तो आपका कांस्टेंट होगी किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, है ना।
हम जैसे जैसे एच न्यू बाई ई को बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारा वी नॉट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अगर वी नॉट हमारा बढ़ता चला जाएगा तो 7 का आ जाएगा आंसर। इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्व करें। ठीक, अगला देखते हैं। इसने कहा कि एक फोटोन है जिसके पास एनर्जी है हमारे पास 3.4, हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हमने कहा ठीक है ये एक्सटर्नल एनर्जी है इसके पास। इज इंसिडेंट ऑन मेटल हैविंग वर्क फंक्शन। ठीक है, फाई नॉट दे रखा है कितना 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे पता है कि एच न्यू जो आती है वो तुम्हारे पास के ई, वो तुम्हारे पास आती है के ई मैक्स के काम आती है, प्लस तुम्हारे पास किसके काम आती है, प्लस फाइव नॉट के काम आती है। ठीक है, तो 3.4 में से अगर हम 2.0 माइनस कर देंगे ये 1.4 हो जाएगा और ये कहलाएगा तुम्हारे पास क्या, ये कहलाएगा तुम्हारे पास के ई मैक्स का, राइट। तो द के ई मैक्स वैल्यू विल बी 1.4। नेक्स्ट, now next we have next we have a photon of energy 6 electron volt are incident of this. Okay, so we again write. So they are asking for the minimum kinetic energy. So there is no need to calculate anything. The minimum kinetic energy possible is zero. Okay, the minimum kinetic energy possible in the photoelectric emission is always zero whatsoever the value is given. Okay, whatsoever the value is given, the minimum kinetic energy would always be zero. So no need to calculate it ever, right? Okay. Now next question. When light falls on a metal surface, the maximum kinetic energy of the photoelectron depends upon the maximum kinetic energy. Okay, so maximum kinetic energy is equals to EV naught is equals to H nu minus H nu naught. Okay, अब बात सबसे पहले इसने टाइम की कर दी थी। टाइम का तो कोई लेना देना है नहीं, है ना, टाइम का तो कोई लेना देना है नहीं। देखा ठीक है, कोई लेना देना नहीं। ठीक, अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। हाँ यार, फ्रीक्वेंसी से तो बात करनी पड़ेगी, है ना, फ्रीक्वेंसी से तो बात हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, और इंटेंसिटी से तो कोई लेना देना नहीं है। वेलोसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट नहीं, वेलोसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट नहीं, जब फोटोन एग्जैक्टली स्ट्राइक कर रहा होता है उसकी वेलोसिटी से एक्चुअल में कोई लेना देना नहीं है। जब वो स्ट्राइक कर देगा मेटल सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन्स को हिट मारेगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, वो जो पर्टिकुलर वेलोसिटी से जाते हैं वो हमारे लिए मुद्दे की वेलोसिटी। तो इनसे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, सो बी वुड बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question we have the threshold frequency for the metal is 10 to the power 15 hertz light of the wavelength. So lambda is given as 4000 angstrom. Okay, and threshold frequency is given as 10 to the power 15 hertz. Fine. Which of the following statement is correct? कौन सा statement इसमें जो है वो correct statement है, ये हमको यहाँ बताने का है। Okay. Now we know that C is equals to mu lambda. Okay, 3 into 10 की power 8 meter per second upon 4000 into 10 की power minus of the 10 is equals to nu. Okay, so 3 upon 4 into 10 की power 8 and 10 की power 10 और ये तो 7. Okay, so this would be 0.75 into 10 की power 15 hertz, right? This would be the frequency. Now, since nu is less than nu naught, because 0.75 into 10 की पावर 15, ये 10 की पावर 15 से कम है, क्योंकि न्यू पावर न्यू नॉट से ही कम है, तो क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे। तो इसने कहा नो एमिशन, कोई एमिशन नहीं होगा। इसने क्या बोला, इसने कहा हमारे पास जो है नो एमिशन, कोई एमिशन नहीं होगा। अगर कोई एमिशन नहीं होगा तो क्या करा जाए, तो इसने कहा कि सी पॉइंट बेकार है, डी पॉइंट बेकार है। ठीक है, आप भी बेकार हैं, कोई एमिशन होना ही नहीं है। एमिशन नहीं होना है तो आंसर हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रखा है कि इफ इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज रिड्यूस्ड, राइट। सो इंसिडेंट रेडिएशन वाज 6000 एंगस्ट्रॉम, नाउ it has gone to a lower value that is of 4000 angstrom, right? Now if in a photoelectric experiment the wavelength of the incident radiation is reduced, right? So we know that EV naught is equals to HC upon lambda, HC upon lambda naught. Okay, now this is the general equation. We know that as lambda reduces, HC upon lambda increases, HC upon lambda minus HC
C upon lambda naught increases, that means EV naught increases, that means V naught increases. Now no need to put these values. Okay, no need to put these values in an expression, making two equation, then solving, then calculating. No need to do that. You are doing for the MCQ question and you need to solve it like this, right? So lambda घटना मतलब SC upon lambda बढ़ना बढ़ना, हाँ, SC upon lambda बढ़ गया. अब ये वैल्यू तो तुम्हारे पास कांस्टेंट है, ये वैल्यू बढ़ गई तो ये पूरी वैल्यू बढ़ गई, तो EV नॉट बढ़ गया तो फिर V नॉट बढ़ गया. तो लैम्डा घटने से स्टॉपिंग पोटेंशियल के इंक्रीज होने का, राइट, ठीक है. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के तुम्हारे पास इंक्रीज होने का, डिक्रीज होने का नहीं, इंक्रीज होने का. वैल्यू ऑफ द वर्क फंक्शन विल डिक्रीज. वैल्यू ऑफ द वर्क फंक्शन क्यों डिक्रीज करेगी यार? वर्क फंक्शन तो होता है तुम्हारे पास क्या, एच न्यू नॉट है, एच सी अपॉन लेमडा नॉट, ठीक है. तो एच सी अपॉन लेमडा नॉट में लेमडा नॉट को तो छुआ ही नहीं तुमने, तो हटाओ इसको फिर यहाँ से. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीज. उसने कहा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज. उसने कहा ये कैसे हो सकता है? लेमडा घटा रहे हैं, वी नॉट बढ़ रहा है, वी नॉट बढ़ रहा है तो ई वी नॉट बढ़ रहा है, तो के ई मैक्स इंक्रीज कर सकती है, घट कैसे सकती है? आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा, ठीक है. मैंने यहाँ पे लगभग जितने भी ऑप्शन है मैंने उन सब के बारे में भी चर्चा कर ली है, so that you must be clear about कि ये कब होगा ये कब नहीं होगा, मैंने सारा बता दिया, ठीक है. चलो आगे देखते हैं. अगला क्या है? अगला तुम्हारे पास सवाल दे रखा है हमको कि द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फॉर द मेटल सरफेस इज इतना. तो फाइव नॉट की वैल्यू है 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. द कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, कट ऑफ वेवलेंथ निकालना है. तो हमें तो पता है कि फाइव नॉट इज इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट है, और एच तो आपका सी अपॉन तुम्हारे पास क्या लेमडा नॉट, ठीक है. अब इसने क्या बोला? इसने कहा 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है. क्योंकि मेरे को जूस वगैरह में लेकर के आना होगा तो 10 का माइनस 19, ओके, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन तुम्हारे पास कितना लेमडा नॉट. जब आप लेमडा नॉट सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना 3000 एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाएगा, ठीक है. तो कैलकुलेट करके देख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है सवाल. अगला सवाल हमारे पास दे रखा है, कितना है अगला सवाल क्या है? According to Einstein photoelectric equation, the graph between the kinetic energy of the photoelectrons ejected and the frequency of the incident radiation. इस क्वेश्चन में गड़बड़ी हो जाती है. क्या गड़बड़ी हो जाती है? होता क्या है कि हम थोड़ा बहुत जल्दबाजी में तो रहते ही हैं, ठीक है. जैसे मान लो हमने लिखा एच न्यू माइनस हमारे पास एच न्यू नॉट, ठीक है. अब मेरे को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एच न्यू नॉट वैल्यू कांस्टेंट है, ये न्यू है. हम ये कहते हैं कि एज न्यू बढ़ा, ठीक है, ये ई मैक्स हमारे पास बढ़ा, तो हमको लगता है कि तो लीनियर है, ठीक है. और हम ये भूल जाते हैं कि साथ में हमारे साथ ये भी लिखा हुआ है और उठा के हम ऑप्शन नंबर सी मार्क कर देते हैं. ये गलती मत कर देना, ठीक है. क्योंकि देखो जो y इज इक्वल टू तुम्हारे पास mx है, ठीक है, इसका ग्राफ एक्जेक्टली कैसे होता है? y इज इक्वल टू mx का ग्राफ कैसे होता है? ये होता है y इज इक्वल टू mx का ग्राफ, ये होता है, ठीक है. y इज इक्वल टू तुम्हारे पास जो है mx प्लस c का ग्राफ कैसा होता है? y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ कैसा होता है? वो तुम्हारे पास जो है कैसा होगा? वो तुम्हारे पास लमसम ऐसे होगा, ठीक है, तुम्हारे पास ऐसे होगा, ठीक. और y इज इक्वल टू तुम्हारे पास mx माइनस c का ग्राफ कैसे होगा? y इज इक्वल टू mx माइनस c का ग्राफ कैसे होगा? ये होगा तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से ग्राफ होगा, ठीक है, ध्यान रखना. तो ये तुम्हारे पास ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये तुम्हारे पास ओरिजिन है, राइट. तो ये हमने यहाँ पे लिखा, हमने क्या बोला? हमने कहा कि y इज इक्वल टू तुम्हारे पास mx माइनस c का ग्राफ ये होगा. तो जब ग्राफ आता है तो प्लीज़ थोड़ा सा वेरिएशन का ध्यान रखिएगा. वैसे तो मैंने ग्राफ को बहुत पढ़ाया है, इवन देन आई एम टेलिंग यू कि आपसे मिस्टेक होने के चांसेस हैं, ठीक है. तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे अब मेरे को ये अलग ग्राफ बनाना है तो ऐसा सिंपल है, तो कि के ई मैक्स तुम्हारे पास हो गया है यहाँ पे, ठीक है. और मेरे को पता है कि के ई मैक्स और ये एच वापस न्यू प्लस माइनस ऑफ वापस एच न्यू नॉट, ठीक है. तो मुझे पता है कि ये पर्टिकुलर ग्राफ कैसे बनने वाला है. पर्टिकुलर ग्राफ को मैं यहाँ पे नीचे ले आ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे नीचे लेके आ रहा हूँ, ठीक है. अब इसने क्या बताया? इसने कहा कि सर जो स्लोप होगा, ठीक है, जो तुम्हारे पास थीटा है ये तुम्हारे पास, ठीक है, जो स्लोप तुम्हारे पास यहाँ पे है ये होगा तुम्हारे पास क्या tan थीटा इज इक्वल टू ये है मतलब h, ठीक है, ये है h. और जो ये वाला पार्ट है y इंटरसेप्ट वाला, इसकी वैल्यू है h तुम्हारे पास न्यू नॉट, ठीक है. और क्योंकि ये नीचे है तो ये इसलिए नेगेटिव है, इसलिए ये नीचे बनाया गया, ठीक है. तो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हियर वुड बी दिस टी, ठीक है, ये वाला तुम्हारे पास, ठीक है.
तो ये वाला y mx प्लस सी है जो कि b में बना हुआ है, ये वाला y प्लस mx है जो कि c में बना हुआ है, जो आंसर नहीं है, और ये a वाला तो तुम्हारे पास होगा नहीं इसके लिए। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल हमसे कहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल V for photoelectric emission from a metal surface is plotted along y-axis and the frequency nu of the incident light along the x-axis, right? A straight line is obtained as shown, the Planck's constant is given, right? So जब भी आपको ये मिले तो थोड़ा सा कोशिश करना कि आप इसको बना पाएँ, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ आपको याद रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप ऐसे बना लीजिएगा, V नॉट इज इक्वल्स टू एच अपॉन ई तुम्हारे पास न्यू, एच अपॉन ई तुम्हारे पास क्या न्यू नॉट, राइट? ये आगे वैल्यू उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उससे क्या बोला उसने कहा कि ये वी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, और तुम्हारे पास ये एक तरीके से एक्स एक्सिस की तरह काम करेगी, ये वाई एक्सिस की तरह काम करेगी, ठीक है। तो हमने कहा कि ठीक है, तो जो टेन थीटा है, ठीक है, जो कि तुम्हारे पास यहाँ पे स्लोप है, ये हो जाएगा एच अपॉन तुम्हारे पास ई, ठीक है ना। तो उसने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब इसने हमसे कहा था कि प्लैंक्स कांस्टेंट एग्जैक्टली कैसे गिवन होगा, तो हमने कहा कि देखा जाए तो टेन थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन ई तो आ चुका है, उसने कहा आ तो चुका है। एच इक्वल्स टू क्या है ई इंटू तुम्हारे पास जो है टेन थीटा, एच इक्वल्स टू क्या है ई इंटू टेन थीटा है, तो उसने कहा ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप दैट इज टेन थीटा ऑन द लाइन एंड द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसने कहा प्रोडक्ट ऑफ द इंटरसेप्ट अलोंग वाई एक्सिस, जो इंटरसेप्ट अलोंग वाई एक्सिस है उसकी वैल्यू है एच अपॉन ई न्यू नॉट, बोले तो फाइव नॉट अपॉन तुम्हारे पास ई। तो यार सी से तो कोई मतलब ही नहीं है, इंटरसेप्ट अलोंग वाई एक्सिस से क्या मतलब है? प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन नहीं, तो स्लोप ऑफ द लाइन नहीं, स्लोप ऑफ द लाइन के अलावा इलेक्ट्रॉन भी लगा हुआ है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर तो क्या तुम्हारे पास, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं जानता हूँ आपको आती हैं, ठीक है, आपको पता है, मेरे पढ़ाने से पहले आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। इवन देन मैं इन क्वेश्चन को डिस्कस कर ले रहा हूँ, इफ दे कम इन एग्जामिनेशन, नॉट जस्ट फॉर दी टेस्ट यू हैव रिसेंटली इन रिसेंट डेज, राइट, कि उनके लिए नहीं बल्कि आने वाले एग्जाम्स के लिए भी आपको इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या है? In an experiment on the photoelectric effect, the frequency of f of the incident light is plotted against the stopping potential, just like the same as the earlier question. The work function of the photoelectric surface is given by. तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो तुम्हारे पास वर्क फंक्शन है वी नॉट इज इक्वल्स टू एच अपॉन ई न्यू माइनस एच अपॉन ई न्यू नॉट, ओके। तो यहाँ पे न्यू की जगह पे ये एफ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो हमने कहा कि हम एफ इस्तेमाल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो मुझे ये पता है कि जो ये वाला पार्ट है एच अपॉन ई तुम्हारे पास एफ, और ये हो जाएगा क्या वाई नॉट अपॉन तुम्हारे पास ई, और ये है वी नॉट, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू फाइव नॉट अपॉन ई तुम्हारे पास होती है, ठीक है। अब इसने कहा द वर्क फंक्शन ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक सरफेस गिवन बाय, ठीक है, ओ बी इंटू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमने कहा कि देखें जरा, ओ बी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ओ बी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? फाइव नॉट अपॉन ई को, ठीक है। तो फाइव नॉट इज इक्वल टू ओ बी इंटू तुम्हारे पास कितना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मुझे पता है कि जो बस फाइव नॉट है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है ओ बी इन तुम्हारे पास वोल्ट है ना, ओ ए से तो मतलब ही नहीं है, सोशल मोटर लाइन से तो मतलब ही नहीं है, ओ बी इन वोल्ट या ओ बी इंटू ई इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। अब सिंपल सी बात है, अगर आप ध्यान से देखो तो यार वाई एक्सिस क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल है, मतलब वो वोल्ट है, इसकी यूनिट क्या है? ये तुम्हारे पास वोल्ट है, इससे क्या मल्टीप्लाई हो गया? इससे इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई हो गया, दिस विल बिकम व्हाट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो वी से दैट ओ बी इंटू ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, बच्चे ए और बी में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ओ बी इंटू ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, क्योंकि ओ बी जो है वो पोटेंशियल है और ई तुम्हारे इलेक्ट्रॉन जो है वो वहाँ पे चार्ज की तरह मौजूद रहेगा, ठीक है। अगला देखते हैं सवाल। अगला कह रहा है कि the work function for the tungsten and the sodium are this and this, right? So work function for the tungsten is 4.5 electron volt and work function for the sodium is 2.3 electron volt. If the threshold wavelength lambda for the sodium is इतना, if the threshold wavelength तुम्हारे पास lambda for the sodium is 5460 angstrom, the threshold wavelength for the tungsten,
एक चीज ध्यान देना, सवाल को जरूर ध्यान से पढ़ लेना। पता चला कि तुमने टंगस्टन और सोडियम के लिए वैल्यू लिखी है और जो पहली थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू जो दी है तुमने उसको टंगस्टन की मान ली, तो पूरा का पूरा काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, फाइव नॉट वन इज इक्वल टू कितना, एच सी अपॉन तुम्हारे पास जो है एच सी अपॉन तुम्हारे पास जो है लेमडा नॉट वन, ठीक, और फाइव नॉट टू इज इक्वल टू तुम्हारे पास जो है एच सी अपॉन तुम्हारे पास कितना, लेमडा नॉट टू, फाइव नॉट वन अपॉन फाइव नॉट टू इज इक्वल टू लेमडा नॉट टू अपॉन लेमडा नॉट वन। अब तो बड़े आराम से निकल जाएगा। लेमडा नॉट वन इज इक्वल टू कितना, 5460 इंटू फाइव नॉट टू 2.3 अपॉन कितना 4.5। ठीक है, ये वैल्यू हमने निकाली। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे अब यहाँ पे आपको एमसीक्यू सवाल है ना, तो ज़्यादा कैलकुलेशन में मत पड़िएगा। हमें पता है कि 2.3 बन जाओ और 2.32 जा होता है 4.6, तो ये लगभग लगभग 2 के अप्रॉक्स आ जाएगा। तो 5460 का आधा मतलब लगभग 2700 है ना, लगभग 2700 के आंसर आ रहा है, 2700 के नजदीक आंसर आ रहा है। तो देख लो इसमें से कौन सा है, बी डी ए नहीं है तो सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर तो आपका समय हो तो भैया निकाल लेना, मना भी नहीं कर रहे कि नहीं निकालना ही नहीं, समय हो तो निकाल लेना, लेकिन समय नहीं हो तो फिर ऐसे कर लेना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है द नंबर ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड फ्रॉम अ मेटल सरफेस इंक्रीजेस। ठीक है, तो मेटल सरफेस वापस इंक्रीजेस। तो इसने कहा कि आई इज इक्वल टू होता है एन इंटू एच इंटू न्यू, इसकी यूनिट होती है तुम्हारे पास जूल, इसकी यूनिट होती है तुम्हारे पास सेकंड इनवर्स, और इसकी यूनिट हो जाएगी तुम्हारे पास जूल सेकंड, जूल पर तुम्हारे पास क्या सेकंड। ठीक है, जूल पर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है कि ये तुम्हारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। जब आप वेव थ्योरी के साथ पढ़ेंगे तो इट वुड बी अ लिटिल बिट चेंज्ड। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जरा। इन्होंने कहा द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड फ्रॉम मेटल सरफेस इंक्रीजेस व्हेन द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इंक्रीजेस। नहीं, ये तो आपके पास एनर्जी है और इससे एग्जैक्टली कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इंक्रीजेस नहीं। ठीक है, और वेवलेंथ ऑफ द लाइट तुम्हारे पास इंक्रीजेस नहीं। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंक्रीजेस, ये रहेगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे समझ लीजिए, जब भी ये वाला क्वेश्चन आए तो आप ऐसे लेना एन। ठीक है, एन तो आपका नंबर ऑफ दी हमारे पास फोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ दी फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, ठीक है, और नंबर ऑफ दी फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग पर सेकेंड। राइट, एक फोटॉन जा करके सरफेस में एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करता है। ठीक है, ये सबको ध्यान रखना, ऐसे कर लेना ये वाला था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये अच्छा सवाल है। और देखते हैं जरा, the photoelectric threshold wavelength for the certain metal is इतना, किसी certain metal के लिए जो threshold wavelength है वो 3000 तुम्हारे पास एंगस्ट्रॉम होगी। उसने कहा ओके, इफ द रेडिएशन 2000 एंगस्ट्रॉम की है, ठीक है, अगर रेडिएशन तुम्हारे पास 2000 तुम्हारे पास एंगस्ट्रॉम की है, ठीक है, इंसिडेंट ऑन द मेटल इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड। अब सिंपल सी बात है यार, न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, ठीक है, और लेमडा लेस देन लेम नॉट, ये लेमडा नॉट, ये दो कंडीशन होती है किसी भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के होने को लेकर के। ठीक है, अगर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को होना है तो आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसने कहा कि क्या लग रहा है, इसने कहा कि लग रहा है कि जो 2000 तुम्हारे पास है वो तुम्हारे पास 3000 से तुम्हारे पास कम है। इसने कहा 2000 से 3000 कम है, तो इसने कहा फिर क्या होगा, इसने कहा कि तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन तो एमिट होने चाहिए, इसने कहा बिल्कुल होंगे। इसने कहा कि एमिशन विल टेक प्लेस। ठीक है, इसने कहा एमिशन विल टेक प्लेस। अब इसके क्या ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन कह रहा है प्रोटॉन, प्रोटॉन्स को हटाओ, पॉजिट्रॉन इनको तो भूल ही जाओ। ठीक, इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी एमिटेड, नहीं बिल्कुल होंगे एमिटेड, बिल्कुल एमिटेड होंगे। ठीक, ये आ गया आंसर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल हमसे बोला क्या है, assuming photo emission to take place, the factor by which the maximum velocity of the emitted photoelectron changes when the wavelength of the incident radiation is increased 4 times, right? ये इसने कहा कि assuming photo emission to take place, ठीक है, तो ke max क्या है, ke max क्या है, ये ev नॉट है, ये hc अपॉन लेमडा माइनस hc अपॉन तो वहाँ पर लेमडा नॉट है। इसने कहा हाफ एम वी मैक्स की मैक्स स्क्वायर की बात करें, ठीक है, तो ये एच सी अपॉन लेमडा और एच सी अपॉन लेमडा नॉट। ठीक, अब देखिए, क्योंकि मेरे को वेरिएशन वैल्यू लिखनी है, वेरिएशन वैल्यू का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मैं सर्टेन पैरामीटर को बढ़ाऊंगा, घटाऊंगा, डबल करूंगा, आधा करूंगा, 4 टाइम करूंगा, 8 टाइम करूंगा, और मुझे को उसके हिसाब से किसी दूसरे पैरामीटर की वैल्यू लिखनी रहेगी, है ना। तो इसने कहा कि मैक्सिमम वेलोसिटी,
अब मैक्सिमम वेलोसिटी ने कहा कि क्या लग रहा है, इसने कहा कि लग ये रहा है कि लैम्डा जो है बढ़ेगा, एच सी बाय लैम्डा घटेगा, एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट तुम्हारे पास जो है क्या नाम है, इसने क्या कहा, क्या है मैक्सिमम वेलोसिटी फोर टाइम, ठीक है। लैम्डा घटेगा और ये वैल्यू भी घटेगी और वी मैक्स का स्क्वायर भी तुम्हारे पर घटेगा। तो ऐसा लग रहा है कि हम ये मान लें कि वी मैक्स का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, राइट। सो वी मैक्स इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास अल्फा अंडर रूट तुम्हारे पास लैम्डा। जब भी ऐसे है ना कुछ इस तरीके से लिख लिया करना, ठीक है ना। अब देखो जरा, यहाँ पे लिख लिया आपने क्या, वी मैक्स 1 अपॉन तुम्हारे पास वी मैक्स 2 इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन लैम्डा 1, ठीक है, और लैम्डा 2 तुम्हारे पास अपॉन तुम्हारे पास अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल। अब ये लैम्डा जो है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन से मतलब वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज्ड 4 टाइम, 4 टाइम हो गया है, ठीक है। तो 4 लैम्डा, ठीक है, अपॉन तुम्हारे पास लैम्डा, ठीक है, और ये कितना हो गया, ये हो गया है तुम्हारे पास अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2, हमने कहा ठीक। सो वी मैक्स अपॉन तुम्हारे पास 2 2 इज इक्वल टू वी मैक्स तुम्हारे पास 2। इसका मतलब जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी की क्या हो जाएगी, तुम्हारे पास आधी हो जाएगी, तो आधी हो जाएगी तो ये रहेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, आप बड़े आराम से इसको निकाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, if the work function of a metal is phi then the frequency of the incident light is nu, right, there is no emission of the photoelectron। तो मैंने क्या बोला कि वर्क फंक्शन अगर तुम्हारे पास फाई है और फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट तुम्हारे पास न्यू है, देन देयर इज नो एमिशन ऑफ दिस। हमें पता है कि न्यू ग्रेटर देन तुम्हारे पास न्यू नॉट में एमिशन होता है, ठीक है, न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट पे तुम्हारे पास एमिशन होता है, और न्यू लेस देन न्यू नॉट पे तुम्हारे पास नो एमिशन, एमिशन नहीं होता। एमिशन जो है क्या है, एमिशन नहीं होता, ठीक है। इफ द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज phi एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज देयर इज नो एमिशन दिस, ठीक। हमने ये निकाल दिया, ठीक है। फाई नॉट की वैल्यू हमें पता है, फाई की वैल्यू हमें पता है इस क्वेश्चन के हिसाब से कि वो एच न्यू नॉट होगी, तो फाई अपॉन एच जो है वो न्यू नॉट होगा। तो न्यू लेस देन एच फाई अपॉन तुम्हारे पास कितना एच, ठीक है। अगर न्यू तुम्हारे पास फाई अपॉन एच से कम होगा ना तो तुम्हारे पास एमिशन नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने इसे बता दिया कि इन टर्म्स में भी अगर क्वेश्चन पूछेंगे आपको तो वो आपको मतलब क्लियर होना चाहिए, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, जो आप ना कर पाओ। इस तरीके से ये रहा आंसर। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है लाइट ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा स्ट्राइक्स ऑफ फोटो सेंसिटिव, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो लगभग 95% जनता निपट जाएगी एक ही बार में, ठीक। अब ये क्वेश्चन को देखिए, एक्चुअल में ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बहुत खतरनाक कुछ नहीं है, बस उसको सॉल्व करने का या असेसमेंट करने का तरीका थोड़ा सा टेढ़ा है और कुछ नहीं है। इसने कहा कि लाइट ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा स्ट्राइक्स अ फोटोसेंसिटिव सरफेस एंड कौन सा एमिटेड विद एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ई, तो ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या, एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, ओके। इफ द काइनेटिक एनर्जी इज टू बी इंक्रीज्ड टू 2 ई, ठीक है। तो सेकंड केस इसने कहा काइनेटिक एनर्जी टू बी इंक्रीज टू ई द वेवलेंथ मस्ट बी चेंज टू लैम्डा डैश, ठीक है। तो ये हो गया एच सी अपॉन तुम्हारे पास एस, ठीक, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बोला, द वेवलेंथ मस्ट बी चेंज, जहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू होगी कौन सी वाली, ये वाली या ये वाली या ये वाली या ये वाली, ठीक। इसने कहा ठीक है, चलो देखते हैं क्या है, कैसे सॉल्व करना है हमको। इसने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, ई प्लस तुम्हारे पास इसको हम फाई नॉट ही कह लें डायरेक्टली, है ना, इसकी और हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं और तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गया तो बस 2 ई प्लस तुम्हारे पास जो है फाई नॉट, ये हो गया एच सी अपॉन कितना लैम्डा डैश, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर कितनी है, 2 है, ठीक है। इसने कहा कि डिवाइडिंग तुम्हारे पास 2/1, डिवाइडिंग 2 बाय तुम्हारे पास 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो ई प्लस तुम्हारे पास जो है 5, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारे पास क्या 2 ई प्लस तुम्हारे पास 5, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या एच सी अपॉन लेमडा, और ये हो जाएगा कितना एच सी अपॉन लेमडा डैश, राइट। तो दिस विल बिकम लेमडा डैश अपॉन लेमडा, तो लेमडा डैश अपॉन लेमडा इज इक्वल टू ई कॉमन लिया यहाँ से, तो 1 प्लस तुम्हारे पास 5 नॉट अपॉन तुम्हारे पास ई बना, ठीक है। 2 ई लिया यहाँ पे, तो सॉरी यहाँ पे 2, यहाँ पे ई कॉमन लिया तो 2 प्लस 5 नॉट अपॉन ई यहाँ पे हमने कॉमन लिया, राइट, ठीक है, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि अब मेरे को लग रहा है यहाँ पे
ये हम लोग लिख सकते हैं, ई से ई कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। तो लेमडा डैश अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू 1 प्लस फाइव नॉट अपॉन ई अपॉन बस 2 प्लस फाइव नॉट अपॉन ई, ठीक है। ये आगे वैल्यू। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि कैसे समझेंगे, इसने कहा कि देखो जब भी ऐसा कुछ रहे ना कि आपको नहीं पता है कि अब हम क्या करेंगे, आप फाइव नॉट बाई ई कुछ वैल्यू ले लो। जैसे सपोज आपने ले ली 1 प्लस पॉइंट ऑफ 5 एंड 2 प्लस पॉइंट ऑफ 5, ठीक है। ये वैल्यू आ गई 5 अपॉन तुम्हारे पास 15 अपॉन 2.5 दैट इज 15 अपॉन 25। और 5 3 था और 5 5 था। अब 3 जो है यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, अगर ऊपर 2.5 होता तो मैं ये कह देता कि 2.5 अपॉन 5 1/2 होता है, ठीक है। इसका मतलब ये तो तय है कि जो 3/5 की वैल्यू है ये 0.5 से तो ज़्यादा है, ठीक है, और 100% 1 से कम है। इसने कहा हाँ बात तो सही है, ये 0.5 से तो ज़्यादा है और 100% अगर 1 से कम है, तो सर उस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि लेमडा डैश बाय लेमडा की वैल्यू तुम्हारे पास 1 से कम है और तुम्हारे पास 1/2 से ज़्यादा है। तो इस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि लेमडा डैश की वैल्यू लेमडा/2 से तुम्हारे पास ज़्यादा है और लेमडा से तुम्हारे पास कम। बात समझे? तो इस तरीके से पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा इसका, इस तरीके से हम लोग आंसर निकाल लेंगे। एक और सिमिलर क्वेश्चन है, मैं इसको वो भी दिखा देता हूँ फटाक से, आप वो भी देख लीजिए। यही वाला क्वेश्चन है सर। जो फ्रीक्वेंसी होते हैं इंसिडेंट लाइट फॉलिंग ऑन अ फोटो सेंसिटिव मेटल इज डबल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड तुम्हारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखते हैं जरा ये कैसे करेंगे। अब इसने कहा कि के ई तुम्हारे पास 1, ठीक है, ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन के ई 1, एच तुम्हारे पास म्यू 1 माइनस एच तुम्हारे पास म्यू नॉट 1 एंड तुम्हारे पास कितना के ई 2 तुम्हारे पास एच तुम्हारे पास म्यू 2 माइनस एच तुम्हारे पास म्यू नॉट 2, ठीक है। इसने कहा कि सेम मेटल है, मेटल तो तुम्हारे पास नहीं चेंज किया, सेम मेटल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, म्यू नॉट 1 ही म्यू नॉट 2 होगी इक्वल टू म्यू नॉट होगी, ठीक है। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसने क्या बोला, इसने का एक काम करते हैं कि हमको ये बताया गया है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इज डबल, तो म्यू 2 इज इक्वल टू है 2 तुम्हारे पास म्यू 1, ठीक है। इसने कहा ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसे तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, और हम लिखते हैं के ई 2 अपॉन तुम्हारे पास कितना के ई 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, एच न्यू 2 माइनस एच न्यू नॉट लिख देते हैं, ठीक है। एच न्यू 1 माइनस एच न्यू नॉट लिख देते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 तुम्हारे पास एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट लिख देते हैं, और एच तुम्हारे पास न्यू और तुम्हारे पास एच न्यू नॉट लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या हम कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम जो है कॉमन क्या लेंगे, इसमें से हम एच न्यू को कॉमन ले लेते हैं। एच न्यू कॉमन लिया तो 2 माइनस तुम्हारे पास कितना, 2 माइनस तुम्हारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसने कहा कि देखते हैं जरा वैल्यू कितनी हो जाएगी। इसने कहा ये हो जाएगी न्यू नॉट अपॉन न्यू, ठीक है, और ये हो जाएगी 1 माइनस न्यू नॉट अपॉन तुम्हारे पास न्यू, ठीक है। ये वैल्यू हो गई और ये हो गई एच न्यू, ठीक है, दोनों कैंसिल हो गए। अब देखो जरा, अब हमको ये पता है कि ये तुम्हारे पास के ई 2 अपॉन तुम्हारे पास के ई 1 है, ठीक है। अब नाउ यू वुड नेवर बी अवेयर ऑफ द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द न्यू नॉट अपॉन न्यू की वैल्यू नहीं पता है ना तुम्हें, तो एक काम करना, तो लेट तुम्हारे पास न्यू नॉट अपॉन न्यू की वैल्यू 0.5, और ये टीचर को दिखाने का नहीं है, ये चीज़ टीचर को दिखाने का नहीं है, ये चीज़ तुम्हारे लिए है, तुम अपना सॉल्व करना उठा करके, ठीक है। तो 2 माइनस तुम्हारे पास 0.5 अपॉन 1 माइनस तुम्हारे पास 0.5, दैट मीन्स 1.5 अपॉन 0.5, ठीक है। दैट मीन्स तुम्हारे पास कितना 3। अब कुछ भी वैल्यू ले लो, लेट सपोज 2.3 ले ली, ठीक है ना, और 1 माइनस तुम्हारे पास 0.3 ले ली, ये कितना हो गया 0.7, और ये कितना हो गया तुम्हारे पास जो है ये 2 माइनस सॉरी ये हो गया तुम्हारे पास कितना, ये हो गया तुम्हारे पास 1.7, और ये कितना हो गया, ये हो गया 0.7। अगर तुम जरा ध्यान से देखो तो ये तुम्हारे पास समथिंग वैल्यू जो आई है वो ग्रेटर देन 2 ही आएगी, इसने कहा, और ये वैल्यू भी 3 आई है। इससे ये पता लग गया कि जो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास 2 है, जो काइनेटिक एनर्जी 1 है, ये फैक्टर ग्रेटर देन 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी 2 इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी 1। इसने कहा कि डबल हो जाएगी, नहीं नहीं डबल नहीं होगी। कुछ लोगों को लगता है हाँ बढ़ रही है डबल हो जाएगी, ऐसा नहीं है, डबल नहीं होगी, अनचेंज, ठीक, लेस देन डबल नहीं, मोर देन डबल, डबल से ज़्यादा हो जाएगी, डबल से तो पक्की बात है ज़्यादा ही जाएगी, या तुम कोई भी वैल्यू एग्जैक्टली निकाल करके देखो, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल हमसे ये कहता है कि व्हेन लाइट ऑफ द वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, ठीक है, व्हेन लाइट ऑफ द वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल्स on a photoelectric emitter, photoelectrons are liberated. For another emitter, however, light of 600 nanometer is sufficient for this
Now, what it says, is it incident wavelength or is it threshold wavelength? इसने एक वर्ड इस्तेमाल किया कि फॉर अनदर एमिटर हाउ एवर लाइट ऑफ 600 नैनोमीटर वेवलेंथ इज सफिशिएंट फॉर क्रिएटिंग फोटो एमिशन। जब लेमडा ग्रेटर देन लेमडा नॉट दिखते हैं तो हम ये कहते हैं कि लेमडा की वैल्यू लेमडा नॉट या उससे ज़्यादा होती है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है। जब लेमडा सॉरी है न्यू के बारे में, ठीक है, न्यू की वैल्यू तो हमारे न्यू नॉट से ज़्यादा होती है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है। लेमडा की वैल्यू तो हमारे पास लेमडा नॉट से अगर कम लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, हम लिखेंगे लेमडा की वैल्यू लेमडा नॉट से कम रहेगी या उसके बराबर हो जाएगी तब तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तो आपस हो जाएगा, राइट। अब उसने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि सफिशिएंट है, इतनी सफिशिएंट है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्रिएट करने के लिए, ठीक है, इतनी सफिशिएंट है। तो लेमडा की वैल्यू हद से हद तो आपको कितनी जा सकती है, लेमडा नॉट तक जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि लेमडा नॉट 1 दे रखा है तो आपको 300 तो आपको नैनोमीटर, ठीक है, और लेमडा नॉट 2 दे रखा है तो आपको 600 नैनोमीटर, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वर्क फंक्शन ऑफ द टू एमिटर? कुछ बच्चे इस बात में कंफ्यूज जाते हैं कि 5/1/5 निकालना है या 5/5 निकालना है। Unless and until they are not mentioning you कि 5/5 निकालना है, you will always consider the first to the second. Okay, you would always consider the first to the second part only. You would never consider on your own the second to the first. ये नहीं करना, ठीक है, वरना क्या होगा, आप टीचर से बहस करोगे कि भाई नहीं हमने तो सही निकाला है, वो कहेगा कि आपको पहले से मानना चाहिए था, वो अपनी कुछ बात कहेगा, आप अपनी कुछ बात कहोगे और मामला कहीं नहीं जाएगा, फायदा नहीं है इससे, ठीक है। तो 5/1 तुम्हारे पास 5/2 इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन lambda naught 1 upon hc upon lambda naught 2, ठीक है। तो देखो तो फॉर lambda naught 2 upon lambda naught 1, ठीक, lambda naught 2 की वैल्यू 600 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी 300, ठीक है। तो हमने यहाँ पे निकाला आंसर पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, और ये क्वेश्चन निकाल करके कितना पता लगा, ये लिखा 2। हमने क्या निकाला, हमने 5/1 अपॉन 5/2 निकाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने हमको बताया नहीं है इसलिए हमने ये वैल्यू निकाली, तो 2/1, ठीक है। तो कैन गिव द आंसर एज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला, द फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ द फोटो करंट विद द एनोड पोटेंशियल फॉर द फोटो सेंसिटिव सक्सेस फॉर 3 डिफरेंट रेडिएशन IA IB। अब देखो सिंपल सी बात है, ये तुम्हारे पास ऊपर है, ये तुम्हारे पास ऊपर है, ठीक है। तो इसने कहा कि तुम्हारे पास IC तो तुम्हारे पास IB है, ये ग्रेटर देन IA है ना। और हमें पता है कि जैसे जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल्स की वैल्यू बढ़ रही थी वैसे वैसे फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू बढ़ रही थी, तो हम कहेंगे कि न्यू सी जो है वो तुम्हारे पास न्यू बी से ज़्यादा है, इक्वल्स टू न्यू ए के बराबर है, ठीक है। चलो तो हम बात कर लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखा है। तो ये कह रहा है कि आई बी ग्रेटर देन आई ए है, ठीक है, आई बी तुम्हारे पास जो है ग्रेटर देन तुम्हारे पास आई ए है, इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू है, इसने कहा इसका मतलब आई बी जो है वो नॉट इक्वल टू तुम्हारे पास आई ए है, और फ्रिक्वेंसी तुम्हारे पास ए और बी की बराबर है। तो इसने कहा कि यहाँ पे तो सभी ऑप्शन को देखते हुए लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए ही आंसर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, the stopping potential as a function of the frequency of the incident radiation plotted for two different photoelectric surfaces A and B. The graph shows work function of A. अब यार ये तो बहुत सिंपल सा है, इसमें तो कुछ बताना नहीं है खतरनाक जैसी चीज, ठीक है। ये तुम्हारे पास दे रखा है, एक तुम्हारे पास ये वाला पार्ट दे रखा है, ये वाला पार्ट, हाँ, और एक तुम्हारे पास ये वाला पार्ट दे रखा है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट दे रखा है। इसने क्या कहा, ये तुम्हारे पास A के लिए है, ये तुम्हारे पास B के लिए है, ठीक है। इसने कहा कि ये तुम्हारे पास जो है ये तुम्हारे पास 5/0 A है और ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास जो है 5/0 B है, ठीक है। अब साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, साफ साफ यहाँ दिख रहा है, द ग्राफ शोज दैट द वर्क फंक्शन ऑफ द A, वर्क फंक्शन ऑफ द A इज स्मॉलर देन द वर्क फंक्शन ऑफ द, ठीक है। तो इसमें कुछ सोचने वाली ज़्यादा बात ही नहीं बची, ठीक है, डायरेक्ट सवाल है तो, ठीक है। तो 26 का आंसर कितना होगा, ये होगा तो हमारा आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन here the next question is this. Now the curves A, B and C and D shows the variation between the applied potential difference V and the photoelectric current I at two different intensities of the light, that is I1 greater than I2, in which figure is the correct variation shown. सिंपल सी बात है यार, ये कटिंग फिटिंग तो होगी नहीं, कटिंग फिटिंग तो होगी नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल में कहाँ बना दोगे जाकर, फिर रिटार्डिंग में था, ठीक है, ये भी कटिंग फिटिंग तो होगी नहीं, तो आंसर कौन सा बनेगा, आंसर होगा, ठीक है। ये सब तो बस ग्राफ की नॉलेज है, आपने पढ़े ठीक से होने चाहिए तो आ जाएगा। अब आप सोचो वहाँ कोई चमत्कार होगा तो वो सच में नहीं हो पाएगा, ठीक। अगला, द कलेक्टर प्लेट इन एन एक्सपेरिमेंट on photoelectric effect is kept vertically above the emitter plate. The light source is put on the saturation
uh, and a saturation photo current is recorded. An electric field is switched on which has a vertical downward direction. Okay. Now this is the positive plate, this is the negative plate. इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ हुई है तो ये इलेक्ट्रॉन पे एग्जैक्टली क्या लगेगा, समेशन ऑफ द एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू तुम्हारे पास ए वाई लगेगा, राइट। स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई इक्वल्स टू एम इंटू ए वाई लगेगा। तो ए वाई लगेगा तो स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन तुम्हारे पास मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। इसने कहा द इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्सेलरेटेड, इसने कहा इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्सेलरेटेड, इलेक्ट्रॉन जो है वो तुम्हारे पास एक्सेलरेट हो गए। इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेलरेट हो गए हैं तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी विल इंक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि वेलोसिटी विल इंक्रीज, वेलोसिटी तुम्हारे पास बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है। वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं। अब इसने कहा कि क्या फोटो करंट विल इंक्रीज, नहीं फोटो करंट नहीं बढ़ेगा तुम्हारे पास, ठीक है। क्या काइनेटिक एनर्जी तो फोटो इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज करेगा, हाँ काइनेटिक करेगा। क्या सम पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, नहीं। क्या थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड से क्या मतलब है भाई, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, तो आंसर होगा क्या बी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे यहाँ पे पूछा गया है द करेक्ट कर्व बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी। अरे भैया वी तो बोला ना कि हम नहीं है फंक्शन इंटेंसिटी के, तो काहे पूछते, तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल को मतलब ही नहीं है यार, तो बढ़ाए रहो बढ़ाए रहो बढ़ाए रहो, वो बढ़ेगा ही, तो आंसर क्या हुआ, ठीक। अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है तुम्हारे पास ये। तो उसने कहा कि V2 स्टॉपिंग V2 तुम्हारे पास यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे V1 दिखा रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यूज, है ना, और दिखा रहा है V2 ग्रेटर देन V1 है। इसने कहा कि हमको पता है कि ये तुम्हारे पास न्यू2 होगा और न्यू1 होगा, हमें पता है ये बात, ठीक है, कि तुम्हारे पास न्यू2 यहाँ पे न्यू1 से ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि V2 तुम्हारे पास V1 से ज़्यादा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है, तो इनकी बात तो तुम्हारे पास इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी से ये ज़्यादा है। और हमें पता है कि फ्रिक्वेंसी जो है, ठीक है, सी इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास सी इक्वल्स टू म्यू लैम्डा के हिसाब से फ्रीक्वेंसी जो है वो लैम्डा से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब लैम्डा 2 जो है वो लैम्डा 1 से कम, लैम्डा 2 जो है लैम्डा 1 से कम, ठीक है। So these are some questions, some 30 questions I have discussed here. Okay, so I expect some of the question in the examination, both in the board exam, both in the pre-board exam and so on. वो यहाँ से जरूर आए, और ऐसे कम से कम 5,000 क्वेश्चन बना दूंगा मैं, ठीक है। ये तो अभी पहले 30 क्वेश्चंस हैं, तो इट विल बी योर जॉब टू कंप्लीट देम इन टाइम, ठीक है। ये मत कहना कि हमने बताया नहीं है, मैं सारा बता दिया, पढ़ना तुम्हारे ऊपर है, समय तुम्हें निकालना है, पढ़ लेना, आ जाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ोगे तो भाई तुम्हें लगेगा बाद में देख करके वीडियो में कि यार ये तो हम तो डिस्कस थे और हमने देखे नहीं है, तो दैट वुड बी योर job, okay, that's not my job, I've done my job completely, right? So this is the first lecture of the MCQ marathon 2022 board exam series, right? And I would be giving for more than 40 or 50 lectures on that, okay. Okay, bye bye.